discuss evolution chapter here. Origin of universe, Big Bang theory 13.8 billion years ago, and then after universe से गैलेक्सीज बनते हैं, गैलेक्सी सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम से बनता है अर्थ. To Big Bang theory, universe expanded and temperature came down. Helium and hydrogen were formed some time later. Universe with different galaxies formed. फ्लोरा को प्लांट बोलते हैं और फना को एनिमल बोलते हैं. लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रैवल करने को बोलते हैं. 1 लाइट ईयर में आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो स्टेलर डिस्टेंस जो कि मेजर होता है लाइट ईयर में. बिटवीन प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सी आर कॉल्ड स्टेलर डिस्टेंस. Origin of Earth 4.5 billion years ago. Life appeared 500 million years after formation of Earth 4 billion years ago. First non-cellular life formed in 3 billion years ago. Cellular life formed 2 billion years ago. 2 billion. Non-cellular 3 billion. Cellular 2 billion. Earth gas released: methane, carbon dioxide, ammonia, water vapor. Water vapor not released, only methane, carbon dioxide, ammonia are released. Primitive atmosphere, there was no ozone layer, so UV ray easily enter. Oxygen reacted with gas like methane, ammonia, carbon dioxide, nitrogen, water. Oxygen was also responsible for the formation of ozone layer. Earlier atmosphere was reducing type the high temperature. According to theory of origin of Earth, how to life form here? Slowly temperature down, water vapor formation, cloud formation, condensation, rainfall. First filled in the pits, form of ocean, hot with various chemical, life appeared. First life in water. Lots of theory are here. Firstly, theory of special creation. Life was created 6 billion. Such a diversity. Earth is about 4,000 years old. And the next theory of casatropism. According to this theory, event exciting to life, new life came. थ्योरी ऑफ पैनस्पेर्मिया, कॉस्मोजोइक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी मीन्स कि लाइफ जो है वह दूसरे प्लेनेट से किसी चीज़ को स्पर्म और सीड स्पोर को भेजा गया है. चौथे पे आता है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि लाइफ अपीयर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि पसीना और मतलब इसमें बताया गया है कि नॉन लिविंग थिंग से और लाइफ अपीयर हुआ है डिकेइंग एंड रूटिंग मटेरियल, स्ट्रॉ एंड मड से. Theory of abiogenesis disproved by biogenesis theory. Life generation came from pre-existing life, omni vivium ex vivo. लाइफ बायोजेनेसिस में पॉस्चर सॉन नेक एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि बेंट नेक में फ्लास्क में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन ओपन फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ है. में इस वजह से ग्रोथ था क्योंकि एयर इजीली एंटर कर रहा था, इस वजह से ओपन में माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ही ईजिली हो रहा था. 6 नंबर पे आता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज कॉल्ड केमोजेनेसिस. दे गिवन बाय ओपेरन एंड हेल्डेन थ्योरी. ओपेरन इज अ रशियन बायोकेमिस्ट एंड हेल्डेन इज अ इंग्लैंड बायोलॉजिस्ट. प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन. मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी. They propose that condition early Earth suppose that origin of life like highly temperature volcanic eruption reducing atmosphere lightning. So most accepted theory is called theory of chemical evolution is called chemogenesis. To chemogenesis, there are the simple element like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. They are the free atoms. Then we combine like CO2, ammonia, they form inorganic compound. Then after first organic compound like methane and HCN. Then after simple organic compound like amino acid, simple sugar, N2 based nucleotide. Then after simple to complex organic compound, replicating protein, complex sugar, nucleic acid probably came from the first life here. And Urey experiment in 1953, Operin and Halden theory, they also proved chemogenesis. Here the figure of instrument like here electrode, lightning, spark, water cut, conditioner, water in, watering containing organic compound, liquid water in trap, and boiling water 800 degrees Celsius, vacuum pump here. So here the water vapor, methane, ammonia and hydrogen react को कराया गया था 212 and to pass water via inlet liquefied gas tube, and then after water containing organic compound liquid को ट्रैप करा गया. after 18 experiment they found certain amino acid like glycine, aspartic, alanine and gas like aspartic.
here theory of evolution, Lamarckism, Darwinism, mutation theory, modern synthetic theory. This is called biological evolution. Lamarckism में जिराफ वाला केस हो गया. डार्विनिज्म में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन एक सी वॉयज HMS बगेल इनकी शिप थी जो गैलापागोस आइसलैंड पर ले गए थे पैसिफिक ओशन नियर साउथ अमेरिका. दिस थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन इज ऑलवेज द चूज फिटेस्ट मैन, फिटेस्ट सिलेक्शन. बर्ड वैलिस सेम विजिटेड एट द मैलेआर्पिगोस आइसलैंड इन इंडियन ओशन. दोनों थॉमस मैल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी से प्रेरित थे. टू डार्विनिज्म थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के अनुसार कंपटीशन अकर होता है इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक में. इंट्रा स्पेसिफिक विथ इन स्पीसीज होता है और इंटर मतलब बिटवीन स्पीसीज होता है. तो बिटवीन मतलब दो स्पीसीज़ के बीच में हो रही है और इंट्रा मतलब विथ इन अपने में ही हो रहा है. तो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डार्विन स्मॉल एंड डायरेक्शनल यूजफुल वेरिएशन एंड अडाप्टेशन. नेचुरल सिलेक्शन नेचर सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल विथ यूजफुल वेरिएशन विच लीव द मैक्सिमम प्रोजेनी. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म वॉज गिवन बाई हर्बर्ट स्पेंसर. Two key concept natural selection define mechanism of evolution and branching descendant pattern of evolution. Natural selection given by the examples industrial melanism, antibiotic resistant microbes and Darwin finches explained in the chapter and evolution of pesticide. कुछ इसमें अब पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल मेलिज्म. बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड फ़ायदा हो रहा था वाइट विंग मॉथ का क्योंकि वो इजीली कैमोफ्लेज कर रहे थे. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन फ़ायदा किसका हो रहा है? ब्लैक मॉथ का, क्योंकि वह डार्क विंग की वजह से वह कैमोफ्लेज इजीली कर जा रहे हैं. वन इज़ कि जब पेस्टिसाइड ह्यूमन ने क्रॉप्स में छिड़कना या उसका शुरुआत किया तो कुछ ऐसे इंसेक्ट हुए जो अपने को अडॉप्ट कर लिए उस पेस्टिसाइड के बाद भी सर्वाइविलिटी कर गए. तो यह बताता है कि अगर आप फिट हैं तो आप सर्वाइवल कर जाएंगे. इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और अब पढ़ने जा रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी जो कि लार्ज और डायरेक्शनल होता है, पढ़ने वाले हैं. तो यह थ्योरी लार्ज और डायरेक्शनल होता है. यह ह्यूगो डी व्राइस के द्वारा प्रपोज किया गया थ्योरी है. इवनिंग प्राइमरोज ओरेंथेलैमाकी ही सेड म्यूटेशन रिजल्ट इन इवोल्यूशन. ही गेव द टर्म साल्टेशन फॉर अ सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली पॉपुलेशन. म्यूटेशन लार्ज एंड डायरेक्शनलेस. तो म्यूटेशंस आर लार्ज एंड डायरेक्शनलेस. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी 4th नंबर पे आता है. मेनी फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी 5 प्रकार कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे नई स्पीसीज़ की उत्पत्ति होती है, जैसे कि म्यूटेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन. लोग पढ़ने वाले हैं कि एविडेंस हम कैसे कलेक्ट करेंगे कि इवोल्यूशन हुआ था और किस टाइम पे. तो वह होता है कुछ 4 प्रकार में बटा हुआ है. कंपैरेटिवली एक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम देखेंगे, जिसे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कहते हैं बाय कार्बन डेटिंग एंड पैरामेट्रिकल एविडेंस, एम्ब्रोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजिकल में यह होता है कि स्ट्रक्चर हैविंग कॉमन ओरिजिन, लेकिन उनकी जो फंक्शंस होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे कि कॉमन ओरिजिन में ह्यूमन का अलग हाथ का यूज होल्डिंग के लिए है, चीता अपने हैंड को रनिंग के लिए यूज़ कर रहा है, वेल स्विमिंग के लिए और बैट फ्लाइंग के लिए. एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल है होमोलॉजी का, फोर लीफ ऑफ मैन, चीता ऑफ वेल, बट ऑल सिमिलरिटीज एट द पॉइंटर लाइक प्रेजेंस ऑफ ह्यूमरस रेडियस उल्ना, मेटाकार्पल कार्पल फैलेंजेस उल्ना, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट लाइक काकरोच एंड दे होमोलॉजी ऑफ डाइवर्जेंट. एंड प्लांट में भी एग्जांपल जैसे कि बोगनवेलिया एंड कुर्बित्ता. बोगनवेलिया जो प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न यूज करता है तो कुर्बित्ता क्लाइंबिंग के लिए टेंटिल्स यूज करता है. ऑफ ब्रेन वर्टेब्रेटा इज आल्सो कॉल्ड होमोलॉजी मीन्स डाइवर्जेंट. यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन कॉमन है. हम लोग पढ़ने वाले हैं अब एनालॉजीज स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कन्वर्जेंट भी बोलते हैं. तो एग्जांपल है विंग ऑफ बर्ड, आई ऑफ ऑक्टोपस, मैमल विजन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो स्टोर फूड एंड फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन. फिर पढ़ेंगे पैलेंटोटिकल एविडेंस, जहाँ पर स्टडी ऑफ फॉसिल को देखेंगे हम लोग. फुटप्रिंट एंड प्रिजर्व्ड ओवर ईयर. टॉप लेयर, फिर नीचे की लेयर्स को, जो ऊपर का सतह है वो न्यूएस्ट होगा और जो निचली सतह है वह ओल्डेस्ट होगा.
of fossil can determined by carbon dating, electron spin resonance, and relative dating by comparison of deep and top layers. etc. 3 horn face, Petropodon flying reptile. थर्ड नंबर पे आता है राइनासोर, बिगेस्ट डायनासोर 20 फीट हाइट, fearsome dagger like teeth, crocodile, Archaeopteryx, missing link between the reptile and bird, and Brachiosaurus and Stegosaurus, bone spiny plates on back. थर्ड नंबर पे आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस गिवन बाय अर्नस्ट हैकल एंड डिस्प्रूव बाय कार्ल अर्नस्ट वॉन बियर. ही सेड इनिशियल स्टेज में कॉमन सब होते हैं बट लेटर स्टेज में यह कॉमन नहीं होते इनकी एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज फॉर अदर एनिमल्स अकॉर्डिंग टू बायोजेनेटिक लॉ. अब पढ़ेंगे बायोकेमिकल लॉ, जहाँ पर प्रोटीन और जीन पार्ट के आधार पे हम पता कर पाएंगे कि क्या इवोल्यूशन रही है ट्रिप्सिन और बोथ वर्टेब्रेटा एंड इनवर्टेब्रेटास में. रिंग प्रिंसिपल जो होता है वह लार्ज रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशन को दिखाता है. एलेलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट स्टेबल जनरेशन फ्री फ्रॉम. यह जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेटर म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ट्रिप के आधार पर पता किया जाता है. टी को डोमिनेंट और रेसेसिव में दिखाया गया है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड लास्ट में दोनों स्मॉल लेटर है तो होमोजाइगस रेसेसिव. सिमिलर है तो होमोजाइगस. P plus Q इक्वल टू 1. P इज डोटेड बाई एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील एंड इज रेसेसिव एलील. फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर दिखाया गया है मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड उसी टाइप वो भी देख लीजिएगा. और FAA जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जाइगोट. अफेक्टिंग हार्डे विंग प्रिंसिपल आप देख रहे हैं जेन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. लास्ट में आएगा आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट. इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में.